Okay, good afternoon everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are fine, and what about you? I'm also fine, all of you. Thank you. First of all, let me know that ki whether I'm audible properly or not. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So beta, in today's class, just we have to go through the comprehension junction of the chapter number 1. Okay. Just wait. In today's class, we have to go through the comprehension junction of chapter number 1. That is remaining. But in comprehension junction, there is a poem on turning 10. There is a poem on turning 10. We have to go through this poem where the poet is feeling very sad because he is going to be old for 1 year. He is going to be he is going to turn on he is turning 10 actually his year he is going to be 10-year-old, so he is going to celebrate his 10th birthday. So on his 10th birthday he is feeling very sad because he feel the poet feel that he is going to leave all the imaginary his friends. So what the poem is telling, what the poem is feeling, how the poet is feeling in this poem, we'll be going through line by line. So first of all, the first stanza of this poem is Abhishek, can you read this one please? Yes, sir. The whole idea of it makes me feel Your voice is not properly. Muskan, can you read? The whole idea of it makes me feel like like I am coming down with something worse than any stomachache or the headache I get from reading in bad light, a kind of measles of the spirit, a mumps of the psyche, a disfiguring chickenpox of the soul. The whole idea of it makes me feel like I'm coming down with something worse than any stomach ache or the headache I get from reading in bad light, a kind of measles of spirit, a mumps of the psyche, a differing chickenpox of the soul. But in the first stanza, the poet is trying to tell that he is completely feeling very sad. Actually, he is completely feeling sad. The poet is telling that कि the whole idea of it makes me feel like I'm coming down with something. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं किसी चीज के साथ बिल्कुल गिरा जा रहा हूँ, एक तरीके से कमिंग डाउन, एक तरीके से बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ. समथिंग वर्स, बहुत ही बुरा, देन इन स्टमक एक और द हेडेक, पेट दर्द या सर दर्द से भी ज्यादा बुरा. पेट दर्द या सर दर्द से भी ज़्यादा बुरा. आई गेट फ्रॉम रीडिंग इन बैड लाइट, आई काइंड ऑफ, ये जो बैड लाइट में पढ़ने से क्या होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका कभी पेट दर्द करता है, कभी सर दर्द करने लगता है, नहीं बहाना मारते हैं. तो एक्चुअली अभी जो बच्चा, जो पोएट है, ही इज फीलिंग हिमसेल्फ एट 9 years old. 9 साल का बच्चा किस तरीके से बातें कर सकता है कि जब वो 10वां साल, जब वो 10 साल का होने जा रहा है, तो एक्चुअल में ही फील दैट कि जो अभी तक फ्रीडम थी उसके पास, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भरा होने वाला है, क्योंकि वो उसका जो एज है वो 2 डिजिट में होने जा रहा है, सिंगल डिजिट के बजाय. तो एक तरीके से उसको लगता है कि जो मेरे पास फ्रीडम थी, जो मेरे पास इमेजिनरी स्किल्स थी, वो सारी चीज़ें शायद इसी मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मैं छूट जाएगा. तो इसी वजह से जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे जैसे दिन कट रहा था, जैसे जैसे वो 10-year-old हो रहा था, 10वीं साल में प्रवेश करने जा रहा था, वो बहुत ही बुरा फील कर रहा था. और वो इतना बुरा कि जैसे पेट दर्द या सर दर्द, जो कि उसको खराब लाइट में पढ़ने से जो एक तरीके से दिक्कत होती थी, उससे भी ज़्यादा बुरा. अ काइंड ऑफ मिसल्स ऑफ द स्पिरिट. और इतना ही नहीं, जो ये मतलब फीलिंग है, पोएट अपनी फीलिंग को ही तो बुरा बता रहा है कि वो बहुत ही बुरा फील कर रहा था. इस फीलिंग को स्टमक या हेडेक के अलावा, और भी अदर बीमारियों से वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है.
कि इट इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ मेसल्स ऑफ द स्प्रिट, मम्स ऑफ द साइकी और डिफरेंट चिकन पॉक्स ऑफ द सॉल। ये तीनों एक तरीके से स्किन से रिलेटेड आपके एक डिसीजेस हैं। द काइंड्स ऑफ मेसल्स ऑफ द स्प्रिट आप कह सकते हैं, जिसको आप चिकन पॉक्स चेचक बोलते हैं। आपका चिकन पॉक्स नीचे लिखा ही है, तो यानी तीनों जो आपका मम्स ऑफ द साइकी, यानी एक तरीके से जो चिकन पॉक्स की तरह, उसमें चिकन पॉक्स बहुत ही भद्दा तरीके से मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक तरीके से वो इतना जैसे उसका बिडॉल बिना किसी मतलब एक तरीके से दिखने में जितना बुरा लगता है और फील करने में या दर्द, तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों से जो पोएट है वो अपने 10 साल होने को कंपेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग को कंपेयर कर रहा है। ओके, सो we can say that in the first stanza the poet is trying to express his feeling, and वो क्या feeling है? Actually the poet is feeling very sad. Why he is feeling very sad? Because he is turning 10, he is going to be 10 years old, and he felt that कि जैसे जैसे वो 10 साल का होगा, he has to let go for the simplicity और द हिज इमेजिनरी स्किल्स, जो उसके पहले की सिंप्लिसिटी थी या वो सारी चीजें वो धीमे धीमे शायद भूल जाए या खो दे। जस्ट वेट, लेट मी कॉल या। सो नाउ मूविंग हेड ऑन द सेकेंड स्टैंजा, अभिषेक पांडे, कैन यू रीड प्लीज? Yes, sir. You tell me it is too early to be looking back, but that is because you have forgotten the perfect simplicity of being one and the beautiful complexity introduced by two. But I can lie on my bed and remember every digit. At 4, I was an Arabian wizard. I could make myself invisible by drinking a glass of milk a certain way. At 7, I was a soldier. At 9, a prince. You tell me it is too early to be looking back, but that is because you have forgotten the perfect simplicity of being one and the beautiful complexity introduced by two. But I can lie on my bed and remember every digit. At 4, I was an Arabian wizard. I could make myself invisible by drinking a glass of milk a certain way. At 7, I was a soldier, and at 9, I was a prince. Actually, by remembering his earlier days, the poet is telling in the second stanza, the poet is telling that, मतलब एक तरीके से किसी को रेफर कर रहा है, यू टेल मी, एक तरीके से अपने पेरेंट्स को या जो भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो खुश हैं, जो उसको एक तरीके से समझा रहे हैं कि नहीं बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से कह रहा है यू टेल मी इट इज टू अर्ली टू बी लुकिंग बैक। एक तरीके से कोई समझा रहा है तो उसको ये पोएट जवाब दे रहा है, यू टेल मी दैट इट इज टू अर्ली टू बी लुकिंग बैक, बट दैट इज बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द परफेक्ट सिंपलिसिटी ऑफ बीइंग वन। आप ये कहते हैं कि ये बहुत ही जल्दबाजी है पीछे की तरफ मुड़ के देखना, यानी जो अभी जो पोएट है वो 10वां साल उसका लगने जा रहा है, तो पीछे की तरफ ना देख करके आगे बढ़ने के लिए समझाते हैं पेरेंट्स। तो वहां पे पोएट कहता है, मतलब बीइंग ए चाइल्ड, वो कहता है कि ऐसा इसलिए है, इट इज बिकॉज यू हैव फॉरगेटन द परफेक्ट सिंपलिसिटी ऑफ बीइंग वन। ऐसा इसलिए आप कह रहे हैं बिकॉज आप शायद भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं कि किससे भूल चुके हैं? परफेक्ट सिंपलिसिटी ऑफ बीइंग वन। जो सिंगल डिजिट वाली जो एज होती है उसमें जो सिंपलिसिटी होती है शायद उसको आप भूल चुके हैं। एंड द ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस बाय टू, और जो एक बहुत ही सुंदर जटिलता जो 2 डिजिट का ईयर जब शुरू होता है, जो शुरुआत आती है, शायद आप उसको भूल चुके हैं। बट आई कैन लाई ऑन माई बेड, लेकिन मैं अपने बेड पे लेट करके रिमाइंड कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ एवरी डिजिट। मैंने अपने बीते हुए हर साल को मैं मेमोराइज कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। एट 4 आई वॉज एन अरबियन विजार्ड, जब मैं 4 साल का था तो मैं एक अरबी जादूगर था। आई कुड मेक माई सेल्फ इनविजिबल बाई ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क अ सर्टेन वे, और उस समय में एक दूध के एक गिलास को बहुत ही एक निश्चित तरीके से पीते हुए अपने आप को इनविजिबल बना सकता था जब मैं 4 साल का था। एट 7 आई वॉज ए सोल्जर, मैं जब 7 साल का था तो मैं एक सोल्जर जैसे था। एंड एट 9 आई वॉज ए प्रिंस, और जब मैं 9 साल का था एक तरीके से प्रिंस था। तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में एक्चुअल में
पोएट है वो मतलब रिमाइंड कर रहा है अपने इमेजिनरी स्किल्स को, कि जब वो इमेजिन जो करता था, क्या है बच्चे रहते हैं 4 साल के तो वो इमेजिन करते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं, हॉर्न भी बजा रहे हैं, और कभी उड़ रहे हैं, मतलब वो इमेजिन करते हुए जो भी चीजें, जो भी एक्टिंग करते हैं, खेलते हैं। तो इस मान लीजिए दूध पी करके वो बहुत ज्यादा तगड़े महसूस करने लगते हैं बच्चे, मतलब पहलवान ही हो गए, एक गिलास दूध क्या पी लिया, तो इमेजिन करने लगते हैं। बट उनकी एज में तो फिलहाल उनको लगता है कि हाँ हम तो हो गए बिल्कुल पहलवान। तो उसी एज को रिमाइंड करते हुए कहता है कि जब मैं 4 साल का था तब मैं अपने आप को एक सर्टेन वे में दूध पी करके इनविजिबल बना सकता था। अब शायद मैं वो खो दूंगा जब 10 साल का हूँगा, क्योंकि ये 4 साल का था तब मैं कर सकता था, अब नहीं कर पा रहा हूँ। 7 साल का जब था तो मैं एक सोल्जर था, यानी किसी को भी मारना, सोल्जर जो भी करते हैं। 9 साल का जब हुआ तो एक तरीके से अपने आप को एक प्रिंस की तरह फील करता था, तो मतलब एक प्रिंस था। तो ये सारी चीजें इमेजिन करते हुए थोड़ा सा वो अपनी सैडनेस का रीजन बता रहा है। So now let us move ahead on and read the third stanza. Anubhav Shukla, please read the third one. But now I am mostly at the window watching the late afternoon light. Back then it never felt चलो आवाज इनकी क्लियर नहीं आ रही है, चलिए शांत होइए, कोई बात नहीं। बट नाउ आई एम today at the window. Better stop. But now I am mostly at the window watching the late afternoon light. Back then it never fell so solemnly against the side of my tree house, and my bicycle never leaned against the garage as it does today. All the dark blue pen drained out of it. यहाँ पे फिर से वो अपनी सब मिला के जो दुख है उसको प्रकट करते हुए कहता है, बट नाउ, ये सारी चीजें पहले यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में जो सारी चीजों को पिछले समय को इमेजिन करते हुए कहता ही है, फिर उसके बाद कहता है बट नाउ आई एम मोस्टली एट द विंडो वॉचिंग द लेट आफ्टरनून लाइट। एक्चुअली इन दिस लाइन, मतलब इन दोनों लाइनों का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं द पोएट फील्स दैट the poet is like to stay himself and is very कह सकते हैं कि जो पोएट है वो अपने आप को एक तरीके से अकेलापन महसूस कर रहा है। the poet is trying to like staying by himself and has a very rich imaginary world। जो पोएट है वो अपने आप को एक बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड्स में रखता है, और एक ऐसे मतलब एक ऐसे समय पे यहाँ पे कहता बट नाउ आई एम मोस्टली एट द विंडो। अब मैं लगभग उस स्तर तक उस जगह पे पहुंच चुका हूँ, यानी उस दस्तक पे पहुंच चुका हूँ, उस खिड़की उस दरवाजे पे पहुंच चुका हूँ। एंड वॉचिंग द लेट आफ्टरनून लाइट, और बिल्कुल अंत समय आ चुका है, यानी जो हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड का बिल्कुल लास्ट समय आया उसको लगभग शायद मैं देख रहा हूँ। बैक देन इट नेवर फेल्ट सो सॉलमली, और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इतना गंभीरता पूर्वक मैंने कभी नहीं देखा था। अगेंस्ट द साइड ऑफ माई ट्री हाउस एंड माई बाइसिकल, जो अपने ट्री हाउस के अगेंस्ट में इतना गंभीर मैंने अपने आप को कभी भी नहीं पाया था। एंड माई बाइसिकल नेवर लीन्ड अगेंस्ट द गैरेज एज इट डज टुडे, और जो मेरी बाइसिकल थी वो भी कभी भी जो हमारी गैरेज के की तरफ झुकी हुई कभी भी झुकी हुई नहीं रहती थी। एंड माई बाइसिकल नेवर लीन अगेंस्ट द गैरेज, जो मेरी बाइसिकल है वो कभी भी गैरेज पे झुकी हुई नहीं रहती थी। गैरेज पे झुकी हुई रहने का मतलब कभी भी खड़ी नहीं रहती थी। जो साइकिल है वो गैरेज के सामने वैसे झुका करके वैसे छोड़ देते हैं ना बच्चे, स्टैंड वगैरह नहीं लगाया तो दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, तो इस तरीके से कभी भी झुकी हुई नहीं रहती एज इट डज टुडे, जैसा कि आज है। एक्चुअल में क्या है, जब बच्चे थे तब साइकिल लेकर उड़े रहते थे जहां देखा, तो वो साइकिल कभी भी वहां पे गैरेज पे कभी भी झुकी हुई नहीं खड़ी रहती थी, जैसा कि आज है। ऑल द डार्क ब्लू स्पीड ड्रेन्ड आउट ऑफ इट, और ऐसा लगता है कि जितना भी ब्लू स्पीड थी, जितना भी हाई स्पीड था, वो सब कुछ सूख गया, एक तरीके से सब कुछ खत्म हो गया उसमें से। जस्ट वेट, there is a call. So we were telling that
जो सेकंड स्टैंजा की बातें किया गया थी वहाँ पे जो अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, याद करते हुए फिर यहाँ पे कहता है कि आज मैं ऐसे समय पे पहुँच चुका हूँ, मतलब जितना मैं गंभीर हूँ इतना कभी भी नहीं था। और जो साइकिल मेरी आज गैराज के सामने गैराज पे झुकी हुई खड़ी हुई है, ऐसा कभी भी नहीं था। ऐसा लगता है कि जो सारी चीजें यानी जो भी जितनी भी खुशियां थी वो धीमे धीमे सब सूखती जा रही हैं, सब खत्म होती जा रही हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। गौरव तिवारी, रीड द लास्ट वन। Yes, sir. This is the beginnings of sadness. I say to myself, as I walk through the universe in my sneakers, it is time to say goodbye to my imaginary friends. Time to turn the first big numbers. It seems only yesterday I used to believe there was nothing under my skin but light. If you cut me, I would shine. But now, if I fall upon the sidewalks of life, I skin my knees, I bleed. जरा आकृति आप भी पढ़िए सही लास्ट वाला, इधर उधर बहुत देख रही है ना। अगर आप देख रही होती तो इसको पढ़ ले जाती। मैं जानबूझ के आपको नहीं बोल रहा था पढ़ने के लिए कि आप पढ़ तो पाओगे नहीं। दूसरा पढ़ रहा है, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस कर रहा है इसको सुन भी नहीं रही हो, कभी इधर उधर देख रही हो। जरा पढ़ के दिखाइए जरा, आप पढ़ पाती हैं कि नहीं। क्लास 8 में पहुंच गई हैं। माइक ऑन करिए। This is the beginning of sadness. I say to myself as I walk to thought the थ्रो, जब सुनोगे नहीं तो यही थॉट ही पढ़ोगे ध्यान से। थ्रो, आगे। through the ढंग से सुनना सीख लो। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो में क्या सुनना चाहती हो आप? मैं आपका मतलब कहिए तो महिमा मंडित कर दूं आपको। एक तो पढ़ना नहीं आता, बाकी क्या बोलूं आप। This is the beginning of sadness. I say to myself, as I walk through the universe in my sneakers, it is time to say goodbye to my imaginary friends. Time to turn the first big number. It seems only yesterday I used to believe there was nothing under my skin but light. If you cut me, I would shine. But now if I fall upon the sidewalk of life, I skin my knees, I bleed. यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी एक तरीके से दुख को व्यक्त करते हुए कहता है, अपने आप से कहता है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सैडनेस। ये एक्चुअल में ये सैडनेस यानी ये दुख की शुरुआत है। आई से टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता है कि एज आई वॉक थ्रू द यूनिवर्स इन माई स्नीकर्स। ये स्नीकर्स क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ शूज। जैसे आप शूज हैं, स्लीपर्स हैं बोलते हैं, उसी तरह स्नीकर भी होता है। एक तरीके से कह सकते हैं स्पोर्ट शूज। एज ए वॉक थ्रू द यूनिवर्स इन माई स्नीकर्स, जब मैं अपने स्नीकर्स में जब ब्रह्मांड में यानी आगे बढ़ता हूँ, जब आगे चलता हूँ, टहलता हूँ, आगे के बारे में सोचता हूँ, तो क्या पाता है? इट इज टाइम टू से गुड बाय टू माई इमेजिनरी फ्रेंड्स। जो ये अब ये समय आ गया है कि हम अपने जो हमारे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं उनको गुड बाय करने का समय आ गया। बिकॉज टाइम टू टर्न द फर्स्ट बिग नंबर। अब ये जो पहला सबसे बड़ा नंबर है, पहला बिग नंबर है, उसकी तरफ आगे बढ़ने का समय आ गया। इट सीम्स ओनली यस्टरडे, अब ये कल की ही तो बात है। आई यूज्ड टू बिलीव देयर वाज नथिंग अंडर माय स्किन बट लाइट। मुझे आई यूज्ड टू बिलीव, मैं ऐसा विश्वास करता था कि मेरे स्किन के अंदर यानी मेरे शरीर के अंदर प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे स्किन के अंदर प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर वाज नथिंग। इफ यू कट मी आई वुड शाइन। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप मुझे काटोगे तो मैं शायद चमकूंगा, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ लाइट ही लाइट भरा हुआ है। बट नाउ, लेकिन अब, इफ आई फॉल अपॉन द साइडवॉक ऑफ लाइफ, अगर मैं जो अपने लाइफ के यानी जीवन के पथ पे आगे बढ़ता हूँ, गिरता हूँ, आगे चलता हूँ, तो मुझे एक तरीके से आगे बढ़ता हूँ, तो अब मुझे धीमे धीमे इस बात का एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि आई स्किन माई नीज आई ब्लीड। जो मेरे स्किन की, जब मेरे आप नीज के स्किन्स को आप उधेड़ेंगे, जब उसकी खाल निकालेंगे, तो शायद वो ब्लीड करे, वो खून बहे। तो अब मुझे सब मिला के जो कहीं ना कहीं
जो पोएट है वो अपनी पहले की बातें बता रहा है कि जब मैं छोटा था तो व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, जैसे जैसे आई एम गोइंग टू, मतलब आई एम ग्रोइंग, मुझे कहीं ना कहीं जो हमारे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं त्याग करके जो रियलिस्टिक, जो रियल लाइफ है, जो रियल सिनारियो है उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा, और उसको कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना, मतलब उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी रियलिस्टिक से कहीं ना कहीं मुझे मेरा सामना हो रहा है। तो दैट इज हाउ द पोएम एंडेड, और आई होप कि जो पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा पोएम का जो थीम है एक तरीके से वो सैड वाला थीम है, जहाँ पे पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसका एक साल वो ग्रो हो चुका है, एक साल उसका मतलब बड़ा नहीं हो चुका है, एक साल एक तरीके से एक साल उसका खत्म हो चुका है, और वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में, यानी छोटे से जब छोटा था तो इमेजिनरी फ्रेंड्स थे उसके, कई सारी इमेजिनेशन स्किल्स थी, वो सारी चीज़ें खत्म होकर के उसको रियलिस्टिक से जा रहा है सामना करने। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पोएट काफ़ी दुखी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोएम। नाउ आई होप दैट कि आप सभी को भी समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Right now I don't having the scan copy of the exercise of this poem. Actually, in the next class, we'll be discussing all the exercise based on this poem, whether it is fill in the blanks or the short answer type question, yeah, long answer, whatever is there. So all the exercises based on this poem, we will be discussing in our next class. So what do you all need to do? You all need to solve the exercise by yourself first. अभी मैंने सारे एक्सरसाइज को समझा दिया है, एक बार आप लिखिएगा नहीं, एक बार आप स्वयं सारे क्वेश्चंस को स्वयं आप आंसर क्या लिखा जा सकता है आप एक बार स्वयं पढ़िएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, चाहिएगा तो रफ कॉपी में आप लिख भी सकते हैं, if you want then also you can write into the rough copy, but अभी के लिए आपको करना क्या है, just you need to figure out the answer, you need to find out the answer of each and every question whatever you are having in the exercise. तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर वहाँ पे जो इसका एक आंसर पॉसिबल आंसर हो सकता है उस आंसर को डिस्कस करके हम लोग उसी को फाइनल करके सारे बच्चों को लिखवा भी देंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ऑल फ्रॉम टुडे सेशन, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. चलिए फिर आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Goodbye, sir. Goodbye, sir.